the AI which we are seeing right now is not human centric. It's not human centric. So you have a chat GPT, everybody uses, every student uses. Chat GPT doesn't tell the student that you are weak in mathematics. And inside the mathematics, you are weak in linear algebra. So because that is not human centric, that is not customized. Now the next phase would be, there would be a teacher, there would be a school, there would be a student, and there would be a student centric AI that will continuously guide. You give the Android phone to the student of class 4, 6, he is watching videos, games, he is playing game. AI centric AI inside the Android phone will tell you that, or will guide unconsciously that student towards studies. Okay, so that era will come. Okay, so one is human centric AI and other would be collaborative robotics. Clear? So you better, what happens today is we understand how the robot is functioning, how the robot should actually help us out. Now the next level, robot will try to understand how can I help a human. Okay, there would be more robots in a human. Now Android is there, so we will have Android robots. Very soon we will have Android robots doing small mundane repetitive tasks. Like what we do, we clean our floors daily, so we should have some automatic robot that do cleaning for us. Okay, at least the area which is open, which is easily accessible, okay, that is being swept and kept neat and clean, tidy. So that kind of two things would be there. Okay, and of course there would be some disruptive changes also in industry 5.0, because you have to adopt to the change. Clear? Or you will be left out. So that is the things that will happen in 5.0. Any more question? सर अटल में जो भी आप बता रहे थे, अटल में फैकल्टी के लिए भी अभी ऑप्शन है, हाँ, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता है, तो क्या क्राइटेरिया होता है सर, कैसे काम कर सकता है? Means the best one is that start with MSME. They are more open. So your college should be impaneled in MSME. अगर केस नहीं है, then your proposal will be 95% rejected, 99% rejected. Or else, it is extraordinary idea is there. ठीक, okay? तब तो वो accept हो जाएगा. Or else they entertain only impaneled institutes. They'll get the fair chance. Okay? Your institute got this Atal FDP. Now it is easy for them to get the FDP again. Next year you'll see again an FDP. Because they have this habit. जिसको मिल रहा है, जो कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, तभी तो दूसरा मिला. अगर पहले वाले का नहीं मिला होता तो फिर क्या होता? तो गवर्नमेंट हैज लिमिटेड फंड्स, तो वो इम्पैनलमेंट कराते हैं, तो वो देखते हैं कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और वो सारी चीजें आपका कॉलेज डिस्क्लोज करता है जब आप इम्पैनलमेंट करवाते हैं. ठीक है? तो आप जब इंस्पेक्शन कराते हैं या कहीं जाते हैं सबमिशन के लिए, तो वो जा देख लेता है, सब कुछ है, आपने कह दिया और आपके पास मशीनिंग की लैब ही नहीं है और आप कह रहे हो कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है. सर जो इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना एमएसएमई के प्रमोट करने के लिए, एक्चुअली क्या वो थ्योरी में तो बड़ी अच्छी लगती है कि बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट 15 लाख दे रही है. इन फैक्ट क्या होता है कि जो जेन्युइन जो टैलेंटेड लोग ऐसा करना चाहते हैं ना, तो उनको प्रोसीजर के बारे में नॉलेज नहीं होती है. प्रोसीजर जो मिडिल मैन होते हैं ना, डाउट्स, इनको प्रोसीजर ज़्यादा पता होता है. उसमें क्या होता है, वहाँ पे कॉल्यूजन होता है डाउट्स और जो एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, एक्चुअली जो एक्चुअल बेनिफिशरी होता है वो तो मतलब उसको अगर 15 लाख मिलना था तो पता चला मिला 5 लाख है, और बाकी सब मतलब होता ही है, खास पैसे वो लोग खा जाते हैं. लेकिन थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है कि एमएसएमई के प्रमोट के लिए ये स्कीम है, वो सारे वो नेता लोग ही सब और जो दलाल लोग हैं ना वही सब खा जाते हैं पैसे. I got your point. I mean you are drawing lot of experience from this is वो एक गांधी जी का एक स्कीम चलता था, वो खादी बोर्ड, तो वो 35 से 50 लाख रुपए तक का देते थे एमएसएमई को. जैसे आपको साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको राइस प्लांट डालना है,
आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, जैसे आपको पापड़ बनाने हैं, आपको अपने एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए, तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जो है वो आपको देता था। तो प्रॉब्लम क्या थी कि वो पूरा स्कीम का जो सेटअप और डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी, जिसकी वजह से ऐसा इंप्रेशन गया कि यार ये तो उन्हीं लोग का है कि वो आए, पैसा लिया, खाए और चले गए। बट ऐसा अब नहीं है। अगर आपका आइडिया में दम है, देखो आप आइडिया में दम है, देखो फॉर एग्जाम्पल इफ यू अगेन अप्रोच टू खादी ग्राम उद्योग बोर्ड कि मेरे को राइस फ्लोर का मिल डालना है, 50 लाख की फंडिंग करनी है, वो सब अप्रूव करा दोगे आप, वहां से अप्रूवल हो जाएगा, मगर नो बैंक विल गिव यू दैट। अप्रूवल भी ऐसा नहीं होता, जब वहाँ के लोग डिपार्टमेंट के लोग पैसा खा नहीं लेंगे आपसे तब तक अप्रूवल ही नहीं देंगे। अप्रूवल दे देंगे तो बाद में जो सप्लायर्स वगैरह हैं तो ये सब पैसे खा जाएंगे, वो डायरेक्ट पेमेंट होगा। वो I'm getting this point, but देखिए मैं आपको बताऊं सिंपल, वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, तो मैं कुछ अपना लैंग्वेज बैरियर है उसको बचा के बोल रहा हूँ। वी शुडंट टॉक अबाउट दलाल्स एंड दोस काइंड ऑफ थिंग। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पास करा, मेरी बात रिप्लाई सुनिए सर, आपने पास करा लिया यानी हाँ ठीक, फिर आप जब बैंक के पास जाओ तो बैंक इतना लुट चुका है कि उसको पता है यार इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपके चेहरे पे, मेरे चेहरे पे लिखा है कि मैं चोर हूँ, नहीं, आपके नहीं। तो बैंक का एक डेटा सेट होता है, एक डेटा बेस है, उसके डेटाबेस में जितने भी फ्लोर मिल, आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, वो सब लुट गए। मतलब बैंक के पैसे लगे, बैंक ने दिए क्योंकि गांधी बोर्ड ने उसको एश्योरेंस दिया था, वो ये भी पे, सब्सिडी भी दी गवर्नमेंट ने, सब्सिडी भी। और ये सारी स्कीम्स पहले क्या होता था, केवल और केवल पॉलिटिकली यू नो उन लोग को मिलता था जो पॉलिटिकल टच में होते थे, उन्हीं को स्कीम मिलती थी, वही खाए, वही स्कॉर्पियो से घूमने, सफारी चलाते थे, फिर वैसे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपका आइडिया अच्छा है, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म थोड़ा ओपन है, प्लेटफॉर्म थोड़ा, मैं ये नहीं कह सकती ऐसा आज भी नहीं होता या नहीं होगा, हो सकता होगा, आई डोंट नो, बट नाउ द थिंग्स आर ओपन। आप पूछ सकते हो आरटीआई डाल के, भैया मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया? Did anybody in this room have this guts to ask this कि under what grounds आपने disqualify किया? And for that I think अगर किसी को ऐसा है, you know what about एक कार आई थी डेबू मोटर्स बनाती थी, मटीज, हाँ मटीज बनाती थी, और एक और बड़ी से बढ़िया अच्छी सी कार मटीज। दैट फेलो वो बिलोंग किसको करती थी पता है? कंपनी साउथ कोरिया में। नहीं साउथ कोरिया नहीं, वो डेबू मोटर्स एक्चुअली थी साउथ कोरिया की। एक इंडिया का आदमी उसको खरीदना चाहता था, पूरी फैक्ट्री, और वो गया बैंक के पास, रिजेक्ट, ये कमी है तुम्हारे पास। नेक्स्ट टाइम प्रपोजल में रिमूव करके गया, एक ही पॉइंट कमी, एक ही पॉइंट रिमूवल, एक ही टाइम उसने इम्प्रूव किया, रिजेक्ट। 49 टाइम्स उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। एंड में इतना परेशान हो गए बैंक वालों ने, कह भैया ये रहे जीएम, तुम सामने हमने बैठ के बात करो, ठीक है? उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिजेक्शन, देन आई विल कम बैक इम्प्रूव करके। तो उसने कहा यार योर सच काइंड ऑफ डिटरमिनेंट प्लस टू ग्रांटेड, चलो वो खरीद लाया फिर यहाँ पे। वो एक अलग बात है, वो फेल हो गया जो भी है, लेकिन बैंक ने उसको 49-50 टाइम पे दिया। तो इफ यू आर एक्चुअली वेरी कंसर्न विद योर पैशन, विद योर, तो आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये। और अगर आप सोचो कि कुछ नहीं हो सकता, अब हम रोड के कचड़े को उस साइड देख के, रोड के इस साइड खड़े होके स्वच्छ भारत अभियान को गाली दे रहे हैं, है ना? आपके पास गट्स नहीं है कि आप झाड़ू लगा के वहां पहुंच पाओ। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आज खड़ा होकर कल फिर डाला जाएगा, ये पड़ोसी नहीं सुनता है। आपने कभी उठाने की कोशिश की? एक प्लास्टिक उठाई अपनी जमीन से? किसी ने उठाई? और आपका एनालिसिस इतना तगड़ा है कि आप चाय की दुकान से लेके फ्लाइट में बैठ के कुछ नहीं होगा। तो भाई कभी जब किया ही नहीं तो होगा कैसे? आप बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेटेड इन स्वच्छ भारत अभियान? आपकी गोमती है, आप वहां पे गए किनारे पे, जिसने उसमें से वो वाटर हाइसेंथ निकाल के बाहर रख दिया हो, 1 किलो निकाल लिया, किसी नहीं निकाली, और उनका जो 4-5 लोग निकालने पहुंचते हैं तो बेवकूफ है यार, बेवकूफ आदमी पहुंच गया वहां पे। तो यार आप करना नहीं चाहते, आप क्रिटिसाइज कर दो, तो हमारी पूरा सोसाइटी का एक पैटर्न बन गया, एक ऐसा इम्प्रेशन, वही हमारे बच्चों के पास हो जाता है।
चाहे खुद का बच्चा हो, पड़ोसी का हो, चाहे स्टूडेंट हो। अरे क्या है उसमें चक्कर में पड़ो, इधर पढ़ लो, फाइल हो जाओगे। और आप वेस्ट में देखो जितने फेल है वो सब कंपनी लिए बैठे हैं। स्कूल नहीं गया बिल गेट्स, जुकरबर्ग नहीं गया, हाँ सब जॉब आदि छोड़ के भाग गए और सब बड़े बड़ी कंपनीज वो बड़े बड़े स्टार्टअप बना लिए। हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं बना पाते, हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं बना पा रहे। तो आप बताइए हम पीछे का हैं, हम पीछे का हैं माइंड सेट। सिर्फ माइंड सेट ही तो हमको रोकता है। लेकिन सर जितने ऐसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं जैसे जुकरबर्ग या कोई भी इंडस्ट्रीज में हुए हैं, तो उन्होंने वो किसी गवर्नमेंट की फंडिंग से नहीं आगे बने हैं, वो अपने बहुत लोअर लेवल से बेसिक से काम करके। अच्छा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बैंक से लोन लेके कोई आदमी मतलब बड़ा बहुत बढ़िया। इस सीडी का जमाना था, तो सीडी क्या था, मूवीज की सीडी आती थी, तो आपने देखी वो रेंट भी होती थी, मतलब आप सीडी लाइब्रेरी में जाते थे, रेंट था मूवी, और वो मूवी में सेटलिंग करते थे, सीडी खराब हो जाती थी, फिर अगेन उस सीडी वाला सीडी लाता था, उसकी कॉपी बनाता था। तो बेसिकली सीडी का कंजम्पशन बहुत आया। आई वांटेड टू डू बिजनेस विद दैट। अब देखो यहाँ से बहुत ध्यान से सुनो, वेस्ट में क्या होता है आज भी, यू कैन ओपन बिजनेस ऑन अ कॉफी टेबल। 4 आदमी ने कमिटमेंट किया, हाँ ये बनाओगे तो मैं ले लूँगा, ये लाओगे तो मैं ले लूँगा। मैंने भी 4 आदमी उसका कमिटमेंट ले लिया, क्योंकि मैं भी थ्योरेटिकल आदमी था, ले लिया कमिटमेंट। मेरा मुझे कितने रुपये पड़ती है, उसको मुझे 7 रुपये पड़ती है। तो मैंने ठीक है, मैंने कहीं जाके 6.5 रुपये में डील कर लिया। मेरे को 50 पैसे तो मुझे बचेंगे, इतना कंजम्पशन था लखनऊ में। मैं अच्छा थोड़ा सा ये था कि विद गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, मैंने छोटा पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने कहा इसको टेस्ट करते हैं, तो 5,000 रुपये का इतना बड़ा बॉक्स ले आया सीडी। मैं उसके बाद पहुँचा, मैंने कहा भाई तूने कहा था 7 रुपये में ले लेगा तू, कह रहा मुझे तो इससे भी सस्ती पड़ती है। आप सुनो, अरे इससे सस्ती पड़ी, व्हाट डू यू मीन? कह रहा है यार मुझको 5.5 रुपये में पड़ती है। अब मैं बड़ा परेशान, मेरे इतने सारे पैसे फंस गए, मैं बहुत यंग था। तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। आई वेंट बैक टू जिससे मैंने सीडी खरीदी थी, मैंने उसका प्रॉब्लम, मैंने कहा अंकल जी ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ। मैंने वहाँ पे बोला और उसने कहा इतने में, मैंने सोचा आपको इतने में लूँगा, डिफरेंस मेरा होगा। तो उसे बहुत एक्सपीरियंस था, ये कोई नाका इंडोला की बात है। तो पता नहीं क्या उसने मेरे अंदर देखा, और वो नाका इंडोला से अलीगंज आया, मैं अलीगंज में रहता हूँ, और एक बरसात ऐसा वाला मौसम था, खूब बारिश हो रही थी। फिर बारिश रुकी और लिटरली स्ट्रीट्स वर एक्चुअली विद नो पीपल, और मैं रात में 9 बजे उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आया और उसने मुझसे बात की, और उसने मुझसे कहते क्या कहा, बेटा इंडिया में बिजनेस करना है तो पहली कलम मतलब पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे डुबोना ही पड़ता है। वो तुम्हारे साथ खेल गया। अब वो क्या चाह रहा है, तुम्हारे 7,000 रुपये में वो 1,500 रुपये का जो तुम उससे मार्जिन कमाते, वो तुमसे 1,500 रुपये का फायदा कमा रहा है। उसने कह दिया, क्योंकि मैंने क्या किया, मार्केट सर्वे नहीं की। अब बट आई लर्न फ्रॉम। मगर वेस्ट में क्या होता है, अभी भी वो उन्होंने कह दिया हाँ आई विल बाय एट दिस रेट, वो थोड़ा ऑनेस्ट। हमारे यहाँ लोग बहुत चतुर होते हैं, हाँ समझ रहा, मतलब नहीं मैम चेंज नहीं। अरे आप अरे एक तो हम लोग जब सुबह उठते हैं शीशे में, तो ऐसा कोई इस आदमी नहीं होगा दुनिया में, मतलब इस रूम में, जो अपने आप को सुपर डुपर इंटेलिजेंट ना समझता। कोई है बिल्कुल समझता, वो यही समझता है कि भैया मुझसे बड़ा तो कोई पैदा नहीं हुआ ना होगा। ठीक है, अब ऐसे लोगों से तुम डील कर लो। अरे और तो छोड़ो, मैं तो यूनिवर्सिटीज में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हाँ सब कुछ चलता रहा। एंड में जब मेन एग्जीक्यूशन टाइम आई तो मैं रामा यूनिवर्सिटी बताता हूँ, HOD मैकेनिकल और सवाल बना बैठा ना भाई सर मेरा लेक्चर है। मैंने कहा यार मैं पूरे 1 हफ्ते तुम्हारे टाइम के लिए बैठा, तुम यहाँ पे बैठ कर कुछ करोगे और तुम जो है वो कह रहे मेरा लेक्चर है। और करना कुछ नहीं था, एसिटिलीन से एक एसिटिलीन गैस होती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू नेक्स्ट टू हाइड्रोजन होती है। उससे अगर कार चलाओगे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कार का जो पिस्टन है ओवर हीट हो जाता है, इंजन ओवर हीट हो जाता है। तो या तो कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो, या पिस्टन का साइज इतना बड़ा कर दो। तो पिस्टन मॉडिफिकेशन करना था। मैं भी काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के गया, लेकिन एंड में जब एग्जीक्यूशन की बात आई तो उसने हाथ खड़े कर दिए।
मैंने कहा, "यार, क्या चक्कर में पड़ा है अभी तो?" वो कार वहाँ बनी, चली, और चली कितनी जाते यहाँ से, जैसे खैर वो तो थोड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी है, आपका जो डिग्री, ये डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज के 2 बार आए गए, वो गर्म हो गया, रेडिएटर में बताया, अब तो बस फट जाऊंगा मैं, बंद कर दी गई, फोटो सेशन हो गया, एसटीसी से कार हो गई। सर एक बात और है सर, आपका एक आपका 2 मिनट लेंगे। एक्चुअली आपने जो अपनी स्कीम बताई ना एमएसएमई की, तो जो यंग लोग हैं ना, जो जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट है या इसके फैमिली का आदमी है, तो क्या करता है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे पहले वो मेहनत करता है, फिर वो धीमे धीमे ग्राउंड लेवल से राइज करता है, बड़ा जैसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं